Hey guys, welcome to Tile Tutorials. This is Krisha, and we are finally here at Chapter 8, Lesson 8 of our 11th FIGC French, the last lesson. ये lesson के बाद I'll finally get to make a playlist of 11th FIGC French एकदम अलग से, so that the students of 11th of every coming batch can readily find that playlist. सारे के सारे videos all at one place, systematically organized. It's just that I feel kinda overwhelmed क्योंकि ये मेरा first playlist होगा, मेरा first एक पूरा चीज जो मैंने start किया है वो मैं complete करके रख रही हूँ. So I'm just feeling overwhelmed at this point. And there's one more thing that is making me feel overwhelmed right now. It's that we have crossed 300 subscribers. I am just so thankful for each subscription. Each subscription just pushes me कि okay, post more videos, ज़्यादा time निकालो. इतनी inconsistent में रहती हूँ, इतना busy में रहती हूँ, फिर भी there are some lovely students on my Instagram DMs and then on the comments. ये सब फालतू की चीजें मुझे end of the video में बोलनी चाहिए. So I won't waste your time, ज़्यादा. It's just that I'm thanking to all the 300 subscribers. Now let's finally ज़्यादा time pass किए बिना begin our chapter 8. So let's come to the communication part. This clearly says client to endure, which means customer और salesperson के बीच में जो conversation होता है वो इसमें दिया गया है. Very short conversations, just A, B and C. Okay. So let's come to A. So the customer asks, set combien. So he picked an item and he was like, how much does this cost? ठीक है. The salesperson says, 32 euros. I'm so bad with pronunciation. I'm really sorry. Okay. So he says, 32 euro. Whose pays comment per carte of and pesos. तो वो बोलती है this is for 32 euros. How would you pay? By card or by cash? ठीक है, and pesos means cash. So he says par carte la voici. By card here it is. So the payment is done and she's like merci monsieur, bonne journée. Thank you, sir. Have a good day. So now let's come to B. Customer starts here. He says bonjour, une baguette, s'il vous plaît. Hello, one baguette please. So the salesperson is like, voila, c'est tout madame. Here you go. Is that all madam? So the person says non. Ashok says the croissants. अभी croissant में भी कैसा होता है कि croissant भी बोलते हैं कुछ लोग, croissant भी बोलते हैं, अलग अलग pronunciation है, सारे वर्क करते हैं, whatever that pleases you. ठीक है? Okay, so you can use any pronunciation. मैं यहाँ पे croissants बोलती हूँ, ठीक है? Non. Ashok says the croissants. S'il vous plaît. Stop it. The customer here says no. Add two croissants. S'il vous plaît. That means please. And serve it means is that enough? Like in a way of asking, is that fine? Somewhat saying कि मेरा इतना ही order है. That's it. बिल बना दो. Okay. Then the salesperson says 4 euros madam. 4 euros madam. ठीक है? This was also simple. Let's come to C. यहाँ पे आप देखोगे तो first is ça coûte combien les porte-clés. Porte-clés means keychains. What does it cost? The keychains. How much is it for the keychains? So the salesperson says the euro la piece. 2 euros per piece. Okay. So ये customer कहता है alors une dozen s'il vous plaît. So please pack me 1 dozen. Pack me ऐसा लिखा नहीं है but I'm saying उसने ऐसा बोला है. So 1 dozen please. And वो एक और क्वेश्चन पूछता है, नीचे का डायलॉग उसका ही है. Combien cost this bracelets? How much does this bracelet cost? Okay. So the salesman says 3 euros la piece. 3 euros per piece. और यहाँ पे उसने लिखा है set sure that it's expensive. Okay. Basically saying that he or she is not buying it. ठीक है. So ये कम्युनिकेशन पैसेज तो बहुत ही सिंपल था. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, passages of very important topic. Coming to yet another very important topic of your 11th and 12th French दोनों मिला के, क्योंकि अगर आपको अभी से ही नहीं समझा तो आपको बाद में 12th में भी जब ये आएगा तब आपको नहीं समझेगा ऐसा मैं समझती नहीं हूँ, क्योंकि इट्स वेरी इजी. कुछ समझता नहीं ऐसा नहीं होता है. काफी बार क्या हो जाता है कि आप सारी नई चीजें एक साथ पढ़ रहे हो तो आपका ब्रेन सारी चीजें एक साथ याद नहीं रख पाता है, कंफ्यूज हो जाते हो आपकी, अरे फ्यूचर प्रश्न में ये था, किसमें ये था, आपको ऐसा हो जाता है. सो दैट कंफ्यूजन इज नॉर्मल, जो विद टाइम चला जाएगा, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है. बट इट्स रियली वेरी इजी टॉपिक. ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस लॉजिकली थोड़ा सा समझना है. और मैं ना एक काम करूंगी, जो ऐसे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स है ना उनको अलग से क्लिप बना के अलग पोस्ट करूंगी. लेसन में तो ठीक है वो रहते ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लिप्स ना कभी कभी क्या होता है कि आपको पूरा लेसन नहीं देखना होता है, आपको सिर्फ पास रिसॉल्व वापस एक बार मेमोराइज करना है, वापस एक बार देखना है, ग्लांस करना है, फ्यूचर क्रश वगैरह. तो मैं ना एक काम करूंगी, मैं ये छोटे छोटे क्लिप्स में एक बार पोस्ट कर दूंगी, सो दैट दोज हु वांट टू विजिट दोज स्पेसिफिक टॉपिक्स कैन फाइंड देम अच्छे से. कमिंग बैक टू पास रिसॉल्व, व्हाट इज पास रिसॉल्व? आपको थोड़ा बहुत तो नाम से ही समझ पाएगा कि पासे मींस समथिंग दैट इज कनेक्शन विद पास्ट, रिसॉल्व और recent. अगर आप स्पेलिंग वाइज देखें तो which means something recent. So is it recent past? Yeah, exactly. That's what passé récent is. Passé récent is used to describe an action that has occurred or that has happened in recent past.
कोई ऐसा एक्शन जो अभी अभी हुआ है, पास्ट में अभी अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, ओके, जस्ट हुआ है, दैट कम्स इन पास्ट रेसों। मैं लिख देती हूँ, पास्ट रेसों इज फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्शंस दैट हैपेंड इन recent past. Yes, past is for describing the actions that has happened in the recent past. ठीक है, अभी हम आते हैं कि इसका है क्या, मतलब जैसे कि हम लोग एक फॉर्मूला देखता है इतने टाइम से, जैसे कि वहां पे कैसे था, सब्जेक्ट था, फिर आलर का कॉन्जुगेशन था, फिर हमारे इंफिनिटिव वर्ब्स थे एंड अबाउट फ्यूचर क्लॉज। वैसे यहाँ पे भी एक हमको पैटर्न फॉलो करना है, वेरी इजी पैटर्न। फर्स्ट हमेशा की तरह सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस, अब डू यू रिमेम्बर वनीर? वनीर जब मैं आपको करवा रही थी, मैंने आई गेस मैंने बोला तो रहेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वनीर वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई न्यू कि पास्ट रिसॉ आएगा, और पास्ट रिसॉ ना भी आए तो भी वनीर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। वनीर मीन्स टू कम। वनीर एक हमारा इरेगुलर वर्ब है, उसका आई आर वर्ब की तरह कॉन्जुगेशन नहीं होता है। आपने आई डोंट नो कौन से चैप्टर में था, लेकिन इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा सा फटाफट एक कॉन्जुगेशन यहाँ पे वनीर का लिख दूंगी, बट हमारा सब्जेक्ट के बाद आता है वनीर वर्ब कॉन्जुगेशन। वनीर वर्ब नहीं आएगा, वनीर वर्ब का जो कॉन्जुगेशन होगा, जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के साथ जाएगा, वो आएगा। समझा नहीं ना? आपको दोबारा बोलती हूँ, मैंने आपको बोला था कॉन्जुगेशन मतलब जैसे जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज होता है वैसे हमारा वर्ब भी चेंज होता है, दैट्स व्हाट आई मीन। जैसे कि अगर ज है तो वी एंस आएगा, इल है तो वी एन तो आएगा, टी वाला, तो नोज है वेनॉन्स आएगा, वोज है वेनीज आएगा, इल्स है वाइलेंट आएगा। तो ये जो जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये चेंज हो रहा है, तो दैट इज व्हाट कॉन्जुगेशन इज। तो वनीर वर्ब नहीं आएगा, वनीर वर्ब का कॉन्जुगेशन आएगा, ठीक है। प्लस दे, दे ऐसे रहेगा, दे का कुछ डू द ला द एल अपॉस्ट्रोफी कुछ भी नहीं है, दे ही है, ठीक है। वनीर का कॉन्जुगेशन है, प्लस दे है, प्लस वेट मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ, आई डोंट वांट एनी दिस कंफ्यूजन। यार यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, पर मेरे को एक ही गो में लिखना है, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, टूटा टूटा लिखूंगी। तो एक काम करती हूँ, आई राइट दैट डाउन अगेन। सब्जेक्ट जो हमारा हमेशा हमारा होता ही है, वनीर का कॉन्जुगेशन मैंने आपको बोला था, प्लस दे, दे जैसा है एज इट इज रहेगा, ठीक है। लिख देती हूँ यहाँ पे एज इट इज, क्योंकि दे चेंज नहीं हो रहा है, हमारा वर्ब अलग अलग आएगा, वनीर का अलग अलग आएगा, सब्जेक्ट अलग अलग आएगा, दे हमारा एज इट इज ही है, ठीक है। प्लस इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा वर्ब? जो आपने जस्ट किया है वो वर्ब। अगर आपने जस्ट किसी को गिफ्ट दिया है तो डोनेट वर्ब, अगर आपने जस्ट बुक का एग्जांपल किसी को विजिट किया है तो विजिटर वर्ब। जो एक्शन आपने जस्ट किया है वो एक्शन का इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ठीक है। इंफिनिटिव मतलब वो फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, जिसके साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं हुआ है, वैसे इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके पहले दे आएगा एज इट इज, उसके पहले वनी कॉन्जुगेशन, उसके पहले सब्जेक्ट। आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस वनीर कॉन्जुगेशन प्लस दे प्लस इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी वनीर का कॉन्जुगेशन मैं आपको कब बोला था कि मैं दोबारा कराऊंगी। फर्स्ट आता है हमारा, रुको, जो इन एल ऑन मुस रुस इस एस, ठीक है। जो के साथ आता है हमारा वी एंस, टू के साथ भी वी एंस, एल के साथ आता है वी एन विथ टी, ठीक है। लूज के साथ वेनॉन्स, वेनेस, और ये है वाइनेंट, डबल एन वाला। सो ये है हमारा वनीर का कॉन्जुगेशन, मैंने लिख दिया है साइड में। अभी के लिए लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप ये पढ़ते जा रहे हो और आपको एक और टॉपिक जो पास्ट में हुआ है वो याद करना पड़ रहा है, और आपको ना वो हो पा रहा है ना ये हो पा रहा है, ना आप इस पर फोकस कर पा रहे हो ना उस पर। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ये मैं लिख दिया आपके कन्वीनियंस के लिए। आपको आता है तो वेरी गुड, पर आपको नहीं आता है तो आपको एक एक टॉपिक को बहुत फोकस से करना पड़ेगा। ओके, नाउ दैट 11th खत्म हो चुका है, 12th में आपकी ऐसे नादानी नहीं चलेगी। एक एक टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है तो बार बार देखो, जब तक वो एक टॉपिक में आपको क्लैरिटी नहीं आती है तब तक आप दूसरे टॉपिक पे मूव मत करना, ठीक है। अभी के लिए लिख दिया है, नेक्स्ट टाइम आप याद कर लेना, ठीक है, जिसको नहीं आता है उसके लिए। वीएन वेनॉन वेनिस वाइनेट, ठीक है। ये है वनीर का कॉन्जुगेशन। अभी आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा? यही है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ य, और हम लोग बुक का ही एग्जाम्पल लेंगे, विजिटर, ठीक है। विजिटर का ही करते हैं, ठीक है, कि कुछ और करना है, विजिटर ही कर रहा है, कि चलो पार्लर कर लेते हैं। आई डोंट नो, मैं पार्लर वर्क बहुत ज्यादा करती हूँ एग्जाम्पल में दैट्स बिकॉज़ मे बी आई स्पीक अ लॉट।
आई एम यापर, मैं बहुत याप करती हूँ. Because parlor means to speak, and I speak on and on. So, okay, but that also a part of why I am a teacher right now because I love speaking. Let's move our focus back to the topic. Parallel verb ले लेते हैं क्योंकि बुक में ऑलरेडी विजिटेड है, सो बार बार आपको विजिटर करवा के कोई फायदा है नहीं. पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं सारे. अभी हम आते हैं अगर वन ईयर का कॉन्जुगेशन क्या क्या आएगा. ठीक है, इसमें तो आपको पता है वीएंस आएगा, वीएंस, वीएन, वेनोन्स, वेनेस, वाइनन. जो यहाँ पे था एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अभी लिखेंगे दे, 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 दे. ठीक है, ये आप समझ, मैंने एक्चुअली ऐसे लिखा है इसलिए. रुको, वेट, आई डू इट. थोड़ा शादी सा तो लग रहा है. ठीक है, लेट बी. ज वीएंस दे, टू वीएंस दे, इलेवन वीएंस दे, वूज वेनॉन्स दे, वूज वेनेस दे, इल्स इल्स वीएनेंट दे. ठीक है, अभी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब. पार्लर इज एग्जैक्टली पार्लर, क्योंकि ये इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो वहां पे भी आप देखोगे वीएंस दे, विजडर, 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 विजडर ही है. तो यहाँ पे भी वीएंस दे पार्लर, वेनॉन्स दे पार्लर, यही सब है. ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों है वैसे ही है, सिर्फ वन ईयर चेंज हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट पास्ट रिसॉर्ट मीन्स. इट इज टू डिस्क्राइब द एक्शंस दैट हैपेंड इन रिसेंट पास्ट. ठीक है, तो आई होप आपको पास्ट रिसॉर्ट अच्छे से समझ में आ गया हो. कोई डाउट्स हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स. ठीक है, क्योंकि ये हमारे 12th में भी आएगा पास्ट रिसॉर्ट. ओके, जो भी पढ़ा अभी तक सब 12th में आएगा, बट ये टॉपिक तो स्पेसिफिकली आएगा. ठीक है, अलग से आएगा. सो अभी से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको होनी चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. लाइक एवरी चैप्टर, ये चैप्टर में भी वर्बस इरेगुलर्स है. ठीक है, यहाँ पे 3 है और एक चौथा भी है जिसका सेम यही फॉर्मेट होगा. ठीक है, तो आ जाते हैं वर्बस इरेगुलर्स पे. फर्स्ट इज बुलार, सेकंड इज पुवार, थर्ड इज मेट्रो. ठीक है, तीनों जेन्युइनली है, थोड़े इंपॉर्टेंट है. लाइक काफी वर्ब ऐसे रेगुलर्स होते हैं जो कभी आप पढ़ोगे आपको कभी आएंगे भी नहीं. ओके, लेकिन ये आते हैं, ये ट्रांसलेशन वगैरह में भी आते हैं. इसका बी एबल टू वाला पार्ट कम आता है, कैन वाला पार्ट ज्यादा आता है. ठीक है, ये तो सेम ही है. और मेट्रो का तो कीप भी इंपॉर्टेंट है, पुट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दोनों साइड से आता है. ठीक है, सबसे पहले कर लेते हैं बुलार. बुलार मीन्स टू विश समथिंग, टू वांट समथिंग. पुवार मीन्स कैन, something that you can do or something that you are able to do comes in puvar. Metro means to keep or to put. ठीक है, उसमें एक और ये फॉलो होगा यही सेम पैटर्न में, वो है पर मेट्रो which means to allow or to permit. ठीक है, और नोट भी है एक छोटा सा थोड़ा, वो हम बाद में देखते हैं. पहले हम यहाँ पे आ जाता है ज, तो, इलेवन, नूज, वूज, इल्स, एल्स. ठीक है, लाइक एवरी टाइम. बुलार पे आते हैं, इसका आईआर फॉर्म वाला ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना इसका आईआर फॉर्म वाला ट्रीटमेंट होगा, ना इसका आरई वाला ट्रीटमेंट होगा. सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होगा. दैट्स द रीजन दे आर वर्ब एज इरेगुलर्स. लेट्स कम टू बुलार. ड्यूक्स, ड्यूक्स, ड्यूक, बुलॉन्स, बुलेस, वियुलेंट, वियुलेंट है. ठीक है, वीओ नहीं है. या व्यूक्स, टू व्यूक्स, इल एल ऑन व्यूट, नूस, बुलॉन्स, वूस, बुलेस, इल्स, एल्स, वियुलेंट. ठीक है, to wish or to want something. Let's come to puvar. Tiux, tiux, tiut, puwants, pues, puent. वापस to नहीं है, te है. ठीक है, ja piux, tu piux, il el on, piut, nus, puwants, bus, pues, ils, els, puent. ठीक है, अभी आते हैं metro पे. ठीक है, which means to keep or put. Mets, mets, met, metons, metes, metent. ठीक है, जो मेट्स, टू मेट्स, इल एल ऑन मेट, नोस, मेटॉन्स, वूस, मेटेस, इल्स, एल्स, मेटेंट. ठीक है, सेम ट्रीटमेंट होगा पर मेट्रे के लिए. सेम जैसा आप सोचो वही है, बस आपको हर जगह पे पर लगा देना है. मैट्स हो जाएगा पर मैट्स, मेट हो जाएगा पर मेट, पर मेटॉन्स, फिर पर मेटेस और पर मेटेंट. ठीक है, दिस इज फॉर allowing something, permitting something. ठीक है, same. Ja permits, two permits, illalon permit, nus permittons, vus permittes, ils else permittent. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे जो नोट पे. यहाँ पे 2 है नोट्स. Imperative form of bular, that means to wish or want something, is viol for two form, violons for nus forms, violes for vus forms. Imperative होता है टू, नूस और वूस के लिए. ठीक है, यही है, viol है
व्यूलॉन्स, व्यूलेस, व्यूलेस इज यूज्ड फॉर फॉर्मल केसेस, ठीक है। अगर आपको किसी को बोलना है कि प्लीज कम इन, प्लीज एंटर, तो यू विल से व्यूलेस ऑनट्रेड, ठीक है। अभी आते हैं दूसरे नोट पे, इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ जॉपयुक्स, पूरा इसका नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ जॉपयुक्स का बोला जा रहा है। जॉपयुक्स का इंट्रोगेटिव क्या होगा? नॉर्मली हम क्या करते हैं, या तो ऐसा का जॉपयुक्स, ये तो है, ये बराबर है, ऐसा का जॉपयुक्स तो है ही, बट हम क्या करते हैं, पीयुक्स जे से स्टार्ट करते हैं, पीयुक्स हाइफन जे लगा देते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग सेकंड वाले ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पीयुक्स जे नहीं आएगा, टूइस्ट जे आएगा, ठीक है। तो इसके दो इंट्रोगेटिव फॉर्म है जॉपयुक्स के, टूइस्ट जे डॉट 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 व्हाटएवर द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन मार्क, और एल्स हमारा सिंपल जो है ऐसा का जॉपयुक्स डॉट 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 दादा, ठीक है। ये है इंट्रोगेटिव फॉर्म्स, ये है इंपेरेटिव फॉर्म्स, और ये है हमारा टेबल, ओके। So let's move on to the next topic. Let's come to learn negation. Learn negation, like the name suggests, is all about negative words, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं, अगर हमको बोलना है कि वो चीज नहीं है, if we have to add the word no, तो हम learn negation यूज करते हैं। I know आपको अभी तक लगा रहेगा कि हम लोग जो नेपा नेपा कर रहे हैं, it's enough negation, इसमें ही सब कुछ कवर हो रहा है। नहीं, नेपा is just a part of it. नेपा के अलावा भी काफी कुछ है ना, ने तो है ही, एमई तो है ही, उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स है जो लर्न नेगेशन में हमारे काम आते हैं। हर जगह पे हम नेपा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आते हैं लर्न नेगेशन पे। सबसे पहले तो हमारा ऑब्वियस है, सब्जेक्ट आएगा ही, वर्ड हमारा जो भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट तो आएगा ही, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नेम, ऑब्वियसली नेगेशन है, इट्स ऑल अबाउट नेम, ठीक है। प्लस वर्ब, अब जैसे हम लोग ने पा के बीच में वर्ब डाल रहे थे, वैसे अब हम जो भी इसमें से यूज करेंगे, रियाज, रमेश, परसौन, ल, वर्ब बीच में ही आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नेम प्लस वर्ब प्लस व्हाटएवर वर्ड दैट यूज, ये सेम इसके लिए भी है, ये सेम इसके लिए भी है। मैंने बस बार बार ये सब लिखने की जगह एक साथ कंबाइन कर दिया है ताकि ऐसा दिखने में भी थोड़ा बेटर लगे। पा, रियाज, रमेश, परसौन, प्ल, और मैंने बुक के ही एग्जाम्पल एज इट इज लिखे हैं। इसमें आपका थोड़ा सा ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे 5 अलग अलग वर्ड्स है और 5 अलग अलग उसके एग्जाम्पल्स है, तो मैंने 5 ही लिख दिया कि छोड़ो 5 ही लिख देता और बुक वाले ही लिख देता है, इजी हो जाएगा, ठीक है। लर्न नेगेशन, सबसे पहले हमारा वेरी नॉर्मल हमारा आता है न, वर्ब का, नेपा, ठीक है। इसका मीनिंग है सिंपली नॉट, ठीक है। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट से नेपा, आर वेरी नॉर्मल, ठीक है। एग्जांपल, एमे वर्ड यूज किया गया है, एमे मींस टू लाइक समथिंग, ठीक है। नोस, ना, एमॉन्स, नोस का आप देख सकते हो वो कॉन्जुगेशन है, ठीक है। नोस, न, क्योंकि यहाँ पे वोवल क्लैश हो रहा है इसलिए यहाँ पे ऐसे किया गया है। मैं जानती हूँ आपको ये पता होगा, लेकिन कुछ लोग को फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए बोल रही हूँ। नोस, ना, एमॉन्स, पा, लेस, फ्रूट्स। We do not like fruits. Same. I don't like fruits either. ये sentences काफी relatable है, सारे नहीं पढ़ गया, especially last वाला तो fully relatable है for all of us, ठीक है। Nose, lemons, pass, lay, fruits means we do not like fruits. Okay. अभी आते तो हमारा नॉर्मल था, कुछ था नहीं इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है, डोंट वरी। ने, अरे ने, वर्ब, रिया, ठीक है। ने, रिया, which means nothing. Okay. अभी हमने एक फ्रेज किया था, इलिया, एक एक्सप्रेशन था इलिया, that means उसका मीनिंग क्या है, देयर इज। तो मैंने तभी कराया था, इलिया का नेगेशन था इल्मिया, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ने और भले ही या हमारा नहीं है वोवल, लेकिन मिया एक है, एक्सेप्शन है, ने हमारा ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वोवल क्लैश नहीं है, फिर भी यहाँ पे एपोस्ट्रोफी डालना है, इल्मिया, ठीक है। देयर इज नॉट, अगर कुछ है तो देयर इज, इफ देयर इज समथिंग दैट इज नॉट देयर, देयर इज नॉट, देयर इजंट, तो हम बोलेंगे इल्मिया। तो इल्मिया, लिया, दास, ला, सेक, there is nothing in the bag, ठीक है। there is nothing in the bag बोलना था इसलिए हमने इल्मिया यूज किया। अब आता है no verb james, which means never. no james means never, ठीक है। Mary no travel james no dimanche. Mary never works on Sundays, ठीक है। she never works on Sundays. travel means work, dimanche means Sundays, okay। अभी आता है हमारा no plus verb plus persone, which means nobody or no one, ठीक है। no person means nobody or no one। अभी एग्जाम्पल में आता है, इल न इनवाइटेड पर्सन आ ला फेटे दे सम एनिवर्सरी, ही डज नॉट इनवाइट एनीबॉडी ऑन हिज बर्थडे, और ही इनवाइट्स नोबॉडी ऑन हिज बर्थडे, दैट्स व्हाट यू कैन से, ओके। यहाँ पे और क्या हो रहा है इसलिए ऐसे किया गया है, ओके। ये हमारा निगेशन है और ये उसका सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे, ठीक है। अभी आता है न प्लस वर्ब प्लस प्ल, प्लस मीन्स नो मोर और नो लॉन्गर, समथिंग दैट यू डू नॉट हैव एनी मोर, something that does not exist anymore, अभी आप यूज कर सकते हो प्ल, ठीक है। लास्ट एग्जांपल हमारा very relatable to all the students personally, ज ने आई प्ल द अर्जेंट, ज ने आई वापस और का शोर है इसलिए, ने आई मीन्स to not have something, j I means to have something, j I means to not have something, the urgent means money. So
यहाँ पे हम बात करें नो मोर और नो लॉन्गर, आई डू नॉट हैव मनी एनी मोर, लाइक आई नो लॉन्गर हैव मनी। अगर आपको ये बोलना है तो आप बोल सकते हो दर्शन, या होते हैं ऐसे सिचुएशंस, यू रन आउट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड यू डू नॉट हैव मनी एनी मोर, वहां पे भी नेगेशन यूज होगा। सो ये है हमारे ल नेगेशन, का मीन्स नॉट, रिया मीन्स नथिंग, जमेज मीन्स नेवर, परसन मीन्स नोबडी और नो वन, प्लस मीन्स और प्ल मीन्स नो मोर or no longer. Yeah, so that's our negation. Let's move on to the next topic. Coming to the last topic of your chapter 8, also the very important topic, complement the object indirect. हम complement the direct object कर चुके हैं हमारे लास्ट लेसन में, लेसन 7 में, you can see the video, okay? And उसमें भी ऐसा था, सेम थिंग, बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स मैनर में दिखाया गया है, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन इट इज सिंपलर देन यू थिंक इट इज। आई वॉन्ट से कि बहुत ज्यादा इजी है थोड़ा सा हार्ड, लेकिन बुक में जैसे आप देख के पूरा वही हो जाओगे कि भाई क्या है, कुछ भी कभी भी आ रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है कोई भी चीज का। सो आई हैव ट्राइड कि मैं जैसे मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पढ़ा था वैसे ही मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी एकदम माइंड मैपिंग मैनर में कर पाऊँ, यहाँ पे प्लेसमेंट को अलग से दिखा पाऊँ, एरोस में दिखा पाऊँ कि हो क्या रहा है, एंड अगर कुछ चीज अप्लाई हो रही है, कोई रूल अप्लाई हो रहा है तो वैसे लिख दूं, थोड़े से बॉक्स वगैरह बना दो ताकि आप चीजों को डिस्टिंक्टली देख पाओ। इसलिए मैंने सब कुछ इस बारे में बहुत ज्यादा सिंपल मैनर में किया है। आप देखोगे तो आपको अभी थोड़ा लगेगा कि भाई बहुत खिचड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन हम एकदम आराम से करेंगे, लॉजिक के साथ करेंगे, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? तो अब आते हैं फाइनली, कॉम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। व्हाट डू यू थिंक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल था, हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली वही जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे कि मैनर होता है, मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस। पहले तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था, आई वुड रेकमेंड कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा पहले वो देख के आओ। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला पार्ट देख के आओ, वो आपने देख लिया, प्लेसमेंट भी जो है वो सेम एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है? तो आप वो देख के आओ, यू विल फाइंड इट बेटर टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? और जो देख के आए हैं उनको मैं बोल दूं कि वहां पे आपको पता है एकदम इजी सा था, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आंसर करते हैं कि हमने क्या किया है, हमारे किस जो भी इंसान के लिए कुछ भी हमने जो अगर हमने कोई चीज की है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट तुरंत आता है उसके बाद वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि आई गेव चॉकलेट, अगर इतना ही है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा जो बेसिक पैटर्न है, मैंने इतना सही दिया है, सिर्फ आई गेव चॉकलेट टू होम फॉर होम, कुछ भी नहीं बोला मैंने, सिर्फ आई गेव चॉकलेट। यहाँ पे चॉकलेट हमारा है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बोला था, और चॉकलेट वाला एग्जाम्पल दिया था शायद तक, ठीक है? ये था हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर हमने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली चीज की है वो किसके लिए की है? फॉर होम, टू होम, वो आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल आई गेव चॉकलेट टू सिया, तो यहाँ पे जो सिया है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो चॉकलेट था वो तो दे दिया, पर किसको? सिया। तो यहाँ पे जो चीज है वो जिसके लिए की गई है, जिसके लिए, टू होम फॉर होम, वो चीज है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो इंसान है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Indirect object is always a human or a living being. Always. Indirect object हमेशा, indirect object हमारा कुछ भी हो सकता है, मैं चॉकलेट भी दे सकती हूँ, ठीक है, मैं टिफिन भी दे सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए मैं कुछ कर रही हूँ वो तो इंसान या ह्यूमन बींग, या फिर आई एम सॉरी इंसान ह्यूमन बींग सेम होता है, वो तो या तो कोई इंसान होगा या तो कोई लिविंग बींग होगा, ठीक है, डॉग्स एनिमल सब आता है, ठीक है, उनके लिए मैं कुछ कर रही हूँ ना। अभी मैं कोई ऑब्जेक्ट के लिए तो कुछ नहीं कर रही हूँ, जो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली चीज है वो सब होती है ऑलवेज फॉर अ लिविंग बीइंग और अ ह्यूमन, ठीक है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारा एक क्वेश्चन आंसर होता है फॉर होम और टू होम, ठीक है? बुक में सिर्फ टू होम दिया गया है, लेकिन लॉजिकली फॉर होम भी आता है। आपने कोई चीज की है, किसके लिए की है, किसको की है, ठीक है? तो ये अगर ये क्वेश्चन आंसर हो रहा है, जो चीज ये क्वेश्चन को आंसर कर रही है वो है ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। अभी ऑब्वियसली बात आ रही है टू की, तो हमारा टू क्या होता है फ्रेंच में? आ होता है, आ, ठीक है? तो अगर मैं बोलती हूँ टू होम, दैट मीन्स आ क, ठीक है? अगर आ का आंसर हो रहा है तो वो चीज है हमारी ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। आ के ऑब्वियसली आ जाता आ रहा है तो हमारे ये सब फॉर्म्स भी ऑफ आ आएंगे। फर्स्ट इज आ ल, हमारा फेमिनिन सिंगुलर, आ ल हमारा वोवल वाला, ए यू हमारा मैस्कुलिन सिंगुलर, एंड ए यू एक्स विच इज फॉर प्लूरल ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है? आला, आ ल एपोस्ट्रोफी, ए यू एंड ए यू एक्स, ठीक है? ये था हमारा आ का जो भी है वो। और अभी हम यही यूज करेंगे, हम जब जब आंसर कर रहे हैं टू होम फॉर होम, ये सब के लिए हम यही यूज करेंगे, ठीक है? अभी हम आते हैं सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल, ठीक है? ये छोटा सा टेबल आप अभी मत देखो, ठीक है? ये आप बाद में मैं आपको बोल दूंगी क्या है। पहले आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। मैंने बुक का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने बुक के एग्जाम्पल्स लिए हैं विद इंडियन नेम्स, तो आपको ज्यादा दिमाग में बैठे, क्योंकि वहां पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेम्स थे जो हम नॉर्मली हमारे नॉर्मल लाइफ में हमने ज्यादा सुने नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ पे हमारे नॉर्मल लाइफ हमारे सारे इंडियन नेम्स ले लिया, ठीक है? पर ये वाला बुक का एग्जाम्पल नहीं है, ये खुद ही लिखा है मैंने। Je donne le livre à Dhruv, ठीक है?
सिंपल सा है, मुझे आपको ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है इसका मीनिंग क्या है, बाय नाउ आपको समझ में आ गया इसका मीनिंग क्या है। आई गिव द बुक टू ध्रुव, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आंसर हो रहा है, आई गिव द बुक टू होम टू ध्रुव। यहाँ पे ज दोनों ल लिव्रे है, वो ल लिव्रे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने किसको दिया, ठीक है, वो है ध्रुव। ध्रुव हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि वापस सेम ये इसका मीनिंग है कि यहाँ का यहाँ सेम है, ठीक है। ज दोनों ल लिव्रे, आई गिव द बुक आपको, आई गिव द बुक टू होम टू ध्रुव। तो ध्रुव यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज ध्रुव इज द आंसर टू टू होम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बेसिक सा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, जिसके लिए कोई चीज की गई है, ठीक है। इसका प्लेसमेंट कहाँ आता है, हम जब नॉर्मली हमारे सेंटेंसेस में डालते हैं तब इसका प्लेसमेंट कहाँ पे आता है, इट्स सेम एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपने फ्रेश वीडियो देखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो आपके लिए तो एकदम हलवा है ये समझना, ठीक है। जिसने नहीं देखा है, जिसने थोड़ा लेट देखा है, बहुत पहले की मेमोरी है, याद भी नहीं आ रहा है, उसको ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है। सेम रूल जो वहां पे अप्लाई होता था वही सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा बिफोर वर्ब। एक्सेप्शन एक ही है यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है इंपरेटिव का पॉजिटिव। एक्सेप्शन इंपरेटिव पॉजिटिव, ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, ठीक है। ये इसको इसके साथ से तो दूरी रखो, ठीक है। ओ माय गॉड, समटाइम्स आई मेक, इतना नीटली सब करती हूँ फिर भी मैं ना कभी कभी इतना शैबी कर देती हूँ सब कुछ। बेटर, ठीक है। अब मैं आपको बोला था कि मैं छोटे से टेबल पे आऊंगी, ठीक है। ये हमारे वो वर्ड्स है जो हम यूज करेंगे जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये है ज के लिए म, टू के लिए त, अगर इल एल है, इल एल ऑन है तो हम यूज करेंगे लुई लुई, और यहाँ पे आता नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, ठीक है। इल एल होता है तो हम लुई करेंगे। अब आपको लगेगा कि मीनिंग क्या है इसका, अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इल या एल है तो जब हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे तब हम लुई यूज करेंगे, ठीक है। हम बार बार हम मतलब समझो यहाँ पे आशा मेरे, हम बार बार हर मॉम हर मॉम हर मॉम ऐसे नहीं लिख सकते बार बार, ठीक है। तब हमें यूज करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इसकी जगह पे वर्ड क्या यूज करेंगे और कहाँ वो वर्ड प्लेस करेंगे ये तो प्लेसमेंट में आ गया, लेकिन वो वर्ड कौन सा होगा वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अगर नूज है तो नूज ही रहेगा, वूज है तो वूज ही रहेगा। अगर वो इल्स है, जो भी चीज है हमारी, देखो यहाँ पे जैसे आस आस पेरेंट्स, ये इल्स हो गया तो ये आता है लर्ड, यहाँ पे आ सेस आमीस, ये लर हो गया, ठीक है। अगर इल्स या एल्स है तो लर होगा। आप ये वर्ड्स यूज करोगे जब आप यहाँ पे प्लेस करोगे तब। सो दीज आर जस्ट द वर्ड्स दैट यू विल यूज व्हेन यू आर फॉर्मिंग द सेंटेंसेस, व्हेन यू आर आंसरिंग द सेंटेंसेस इन द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। मैं, ते, लुई, लुई, नूस, वूस, लर, लर्स। अभी आता है प्लेसमेंट पे फाइनली, ठीक है। बिफोर वर्ब इतना याद रखो। पहले आते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट टेंस में हमारे दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पहले आते हैं पॉजिटिव पे। नीलम टेलीफोन है, आ सा मेरे। इसमें उसमें सेम एग्जांपल है, बस इंडियन नाम नहीं है, ठीक है। वहां पे फ्रेंच नाम है, आप पढ़ोगे आपको कंफ्यूज हो ना हो इसलिए मैंने इंडियन नाम लिखे हैं। नीलम टेलीफोन है, आ सा मेरे। हर मॉम, ठीक है, वो किसमें आएगी, कौन से कैटेगरी में, लुई, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने लुई लिख दिया ब्रैकेट में, शी कम्स इन द लुई कैटेगरी फ्रॉम हियर। अब उसका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, बिफोर वर्ब। वर्ब कहाँ पे हमारा, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। तो हम लुई ऐसे उठा लेंगे और हमारा बिफोर वर्ब यहाँ पे रख देंगे, तो इसका आंसर आएगा नीलम लुई टेलीफोन है, ठीक है। सिंपल, ओके। अभी अगर यही सेम नेगेटिव होता तो हम क्या करते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। नील न पाले पा आ सेस अमीस, आ सेस अमीस हमारा प्लूरल है तो वो आएगा हमारी लर्न कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पे हमारी लर्न कैटेगरी में आ सेस अमीस आएंगे, ठीक है। ही इज नॉट स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड्स, तो ये अभी हम यहाँ पे हमारा वर्ब तो एक ही है, पार्ले ही है। नो पार आप इग्नोर करो, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए है। नो पार इग्नोर करो, पार्ले, पार्ले इज द वर्ब वी नीड, ठीक है। तो आपको ये उठा के बिफोर वर्ब डालना है, बिफोर पार्ले डालना है, ठीक है। और फिर आप इसको तो इग्नोर कर दो, बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है। नील ले लर पार्ले पा, बाकी का सेंटेंस सेम, ये उड़ जाएगा, ठीक है। आप जो जो ऐसा रिप्लेस कर रहे हो वो सारे वर्ड्स उड़ जाएंगे, ठीक है। हमारे इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो उड़ जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्ड यूज कर लिया तो हमको जरूरत नहीं बार बार यूज करने की। इसका मीनिंग क्या है, नील डज नॉट स्पीक टू हिज फ्रेंड्स, नील डज नॉट स्पीक टू देम, देम यूज किया आपने, ठीक है। तो ये होगा हमारा प्रेजेंट टेंस। अभी हम आते हैं यहाँ पे नहीं, पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्रॉश एंड पास्ट रिसॉ पे। अभी नया नया हमने पास्ट रिसॉ किया, अभी पास्ट रिसॉ भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, इट्स एक्जैक्टली द सेम बिफोर वर्ब, लेकिन यहाँ पे दो वर्ब्स होते हैं। दैट्स द मेन क्वेश्चन हियर कि हमारे दो वर्ब्स होते हैं, जैसे कि फ्यूचर प्रॉश में आलर का होगा और इन्फिनिटिव वर्ब होगा, पास्ट रिसॉ में हमारा वनीर वर्ब होगा और हमारा इन्फिनिटिव वर्ब होगा। तो कहाँ पे होगा प्लेसमेंट, कहाँ पे आएगा हमारा, तो इसका आंसर है बिफोर इन्फिनिटिव इफ टू वर्ब्स आर देयर। इफ देयर आर टू वर्ब्स तो आपको कंसीडर करना है इन्फिनिटिव वर्ब। दैट मीन्स आप यहाँ पे वा मत देखो, सिर्फ प्रेजेंट टेंस देखो, हमारा आलर का कॉन्जुगेशन मत देखो, इन्फिनिटिव वर्ब देखो। यहाँ पे आप अपना वनीर का कॉन्जुगेशन या फिर डे भी मत देखो,
आपसे आपका इंफिनिटिव वर्ब देखो, ठीक है। तो यहाँ पे चलाते हैं फ्यूचर क्लॉज में, आदित्य वर प्रेजेंटेड फियांसे आस एज पेरेंट्स। ही आदित्य इज गोइंग टू प्रेजेंट हिज फियांसे टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वा प्रेजेंटेड है, दो वर्ब्स है, ही इज गोइंग टू, तो वा भी है प्रेजेंटेड भी है, हमको कंसिडर करना है हमारा इंफिनिटिव विच इज प्रेजेंटेड। तो आप पहले सास पेरेंट्स आएगा लर्न, ठीक है, ये पूरा लर्न हो जाएगा, ये लर्न आ जाएगा बिफोर वर्ब हमारा यहाँ पे, बाकी का सेंटेंस एज इट इज सिर्फ ये उड़ जाएगा, ठीक है। आदित्य वा लर्न प्रेजेंटेड सा फियांसे, बस यहाँ तक सेंटेंस खत्म। ही इज गोइंग टू प्रेजेंट देम हिज फियांसे, ओके। नाउ लेट्स कम टू पास इट सॉन्ग, समथिंग दैट यू हैव डन इन द रीसेंट पास्ट, ठीक है। निशा बियॉन्ड दे विजिटेड, यहाँ पे कुछ और वर्ड था, टेलीफोन था, लेकिन वो टेलीफोन ऑलरेडी हमने कर लिया है, इसलिए मैंने विजिटर लिख दिया, ठीक है, सेम थिंग है। निशा बियॉन्ड दे विजिटर आस्क्ड ऑन मेडिसा, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिसा जो है डॉक्टर, वो हो जाएगा कौन सी कैटेगरी में, लुई। सबसे पहले तो आप कैटेगरी डिसाइड करो कौन सी होगी, ठीक है। कैटेगरी डिसाइड होगा, इसके बाद तो आपको सिंपल है, यहाँ पे दो वर्ब है इसलिए इंफिनिटिव वर्ब के पहले डालना है, ठीक है। इंफिनिटिव वर्ब के पहले आप ये मत देखो कि दे के बाद डालो या दे के पहले, सिंपल सी बात है, इंफिनिटिव वर्ब के पहले डालना है तो आप दे को इग्नोर करो, ठीक है। विजिटर के पहले डालना है, ओके। दैट मींस निशा बियॉन्ड दे, ये उठ जाएगा लुई विजिटर, ठीक है। निशा बियॉन्ड दे लुई विजिटर, ठीक है। अभी हम आते हैं इंपरेटिव पे। इंपरेटिव, इसकी भी दो कैटेगरीज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये पॉजिटिव, इफ यू डोंट रिमेंबर, हमारा वो था जो हमारा एक्सेप्शन है, जिसमें बिफोर वर्ब नहीं होगा। बिफोर वर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, आफ्टर वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मॉन्ट्रे टेस्ट डॉक्यूमेंट्स आर लॉ ऑफिशियल, ठीक है। ऑफिशियल ये होगा हमारा आर लॉ ऑफिशियल, ये आ गए हमारी लुई की कैटेगरी में, ठीक है। सबसे पहले हमने लुई की कैटेगरी लिख दी यहाँ पे, ठीक है। मॉन्ट्रे टेस्ट डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग है शो द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे हम लुई मॉन्ट्रे नहीं लिखेंगे, मॉन्ट्रे हाइफन लुई कर देंगे, ठीक है। मॉन्ट्रे लुई टेस्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे शो योर डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिशियल के बदले आ गया शो हर योर डॉक्यूमेंट्स, सिंपली, ठीक है, हमारा एक्सेप्शन, ओके। अभी आते हैं नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंपरेटिव पे, सेम यही सेम रूल में बिफोर वर्ब ना पहले आते हैं सामने क्लास क्लास से, डू नॉट स्पीक टू योर फ्रेंड्स इन द क्लास, ओके, इन द मिडल ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन है इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देयर वुड बी सर्कमस्टेंसेस वेयर यू गेट कंफ्यूज्ड कि भाई मेरा इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, क्योंकि कभी कभी ऑलमोस्ट ऑल केसेस में आप देखोगे कि इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा एंड में आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको होगा कि भाई ये है न क्लास है इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ये है, तो मैंने आपको एक चीज बोली है, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा ह्यूमन या लिविंग बीइंग ही रहेगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा लिविंग बीइंग ये है, अरे सॉरी लिविंग बीइंग नहीं, मेरा इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है या ये है, आप देख लो लिविंग बीइंग कौन है, आमीस है या क्लास है, आमीस है ना, तो यही होगा इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो न पाले का आते ही आमीस दौसला क्लास का एसिटिस रहेगा हमारा। आते ही आमीस कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं लर्न में। मैंने लुई क्यों लिखा है यहाँ पे, ये तो लर्न है ना, आई एम सॉरी, ठीक है। ये आ गए हमारे लर्न कैटेगरी में। अभी सेम हमारा जो प्लेसमेंट है वो है हमारा आएगा वर्ब के पहले, यहाँ पे तो दो तीन वर्ब भी नहीं है। न पा है तो क्या हुआ, मैं आपको पहले ही बोला था कि वो दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको सिर्फ वर्ब देखना है, न पा नो जमेज न रिया कुछ मत देखो, ठीक है। आपको सिर्फ यही देखना है, न पार्ले का जो है उसके पहले हमारा पार्ले जो है वहां पे आएगा लर्न। कैटेगरी आपने डिसाइड कर ली, उसका प्लेसमेंट डाल दो पार्ले के पहले, न लर्न पार्ले का क्लास, डू नॉट स्पीक टू देम इन द क्लास, इन द मिडल ऑफ अ क्लास। ये तो यही इसमें आता है रूल में, ठीक है। ये एक ही है हमारा एक्सेप्शन, बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पे आपको इंफिनिटिव वर्ब्स के बदले अरे यहाँ पे दो वर्ब्स है तो आपको इंफिनिटिव वर्ब्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, मच मोर लाइक आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई ट्राइड कि मैं जितना भी ज्यादा सिंपली समझा सकूं उतना सिंपली मैं समझाऊं। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमेशा मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो। आपको मुझे कुछ अच्छा बोलना है, कुछ खराब बोलना है, कुछ भी बोलना है, आई ऑलवेज काउंट क्रिटिसिज्म एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है कमेंट्स पढ़ना, ठीक है। अगेन the channel has reached 300 subscribers. I am grateful to each of the 300 subscribers. मैं बहुत inconsistent हूँ, but you guys have been so sweet. आपने इतना अंडरस्टैंडिंग रखा है कि मेरा भी पर्सनल लाइफ एंड स्टडीज वगैरह चालू है, इसलिए मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ डायल को, लेकिन मुझे बहुत शौक है वीडियोस बनाने का, टीचिंग का, इसलिए मैं somehow टाइम जब मिलता है ड्रॉ करके I edit and I shoot. But there have been some people who have been so sweet to me in the comments, calling me life savior and all, and even in the Instagram DMs I have received so many paras, legit paras, where people are thanking me after their exam. Such comments really encourage me to keep on doing what I do. फ्रेंच होने के बाद भी मैं सोच रही हूँ कि मैं थियरी भी पढ़ाना चालू करूँ, क्योंकि मुझे थियरी पढ़ाना भी बहुत पसंद है। तो या फाइनली 11th FYGC फ्रेंच यहाँ पे रैप अप होता है।
कुछ लोगों ने मुझे पूछा है बिलान या फिर प्रेटिकॉन्स, ये सब मैंने क्यों नहीं कराया। तो पहली बात तो, और मैंने सिविलाइजेशन वगैरह भी नहीं कराया। सिविलाइजेशन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे आपको कोर कॉन्सेप्ट्स कराने थे, ठीक है। सिविलाइजेशन वगैरह कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है। और रही बात प्रेटिकॉन्स और बिलान की, तो एक टाइम था कि हमारे पास एग्जाम्स आ रही थी, मेरी भी आपकी भी, और हमारे यही वीडियोस कवर नहीं हो रहे थे। तो बिलान वगैरह तो क्या है आपके पास, स्टिल यू हैव गाइड, दैट इज विपुल गाइड, जिसमें सारे सॉल्यूशंस है। एंड अगर आपको ये सब समझ में आता है तो एक बार आप खुद ही सब सॉल्व कर लोगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको गाइड है, ठीक है। अब तो अच्छा है, चैट जीपीटी भी है, ठीक है। तो आई बिलीव कि अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स करवा दूं सबसे पहले एग्जाम के पहले, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप तो या तो खुद कर लोगे या तो आपको विपुल गाइड हेल्प कर सकती है, अगर मैं उसके वीडियोस ना बनाऊं तो। मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी था कि मैं पहले ये सब कवर कर दूं। 12th के वीडियोस मैं रिसेंट में नहीं डालने वाली हूँ, नॉट आई डोंट इवन थिंक सो एक मंथ में भी आएगा ना। लेकिन कोई ऐसी डरने की बात नहीं, आपका 12th का अभी चालू होने नहीं वाला है, इतना होगा तो भी बहुत अभी स्लो स्पेस पे होगा। अभी तो समर वेकेशन भी आपका चालू होगा, तो इतना डरने की बात नहीं है, काफी टाइम है 12th के लिए। सो 12th का मैं काफी टाइम दूंगी और 12th का बाद में मैं स्टार्ट करूंगी 12th फ्रेंच। सो 11th फ्रेंच ends here. I'll see you in 12th French videos now. And lesson 0 तो करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ कवर हो ही चुका है यहाँ पे lesson 0 का, सीधा lesson 1 से करेंगे। और yes, same drill. If you really like the video, please like it. If you have something to say in the comments, nice, bad, anything, please let me know. If you have any doubts, please reach out to me on my Instagram. Feel free. And please subscribe to the channel. Please आप अपने friends को भी share करना videos अगर आपको लगता है कि उनके भी काम आएंगे. Okay? I'll see you in the next video. Bye.